को ठीक टाइम पे कर लिया जाए। योर ट्रू पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, ये हम लोगों का आज छठा वेबिनार है। 4 वेबिनार हम लोगों ने लाइफ स्किल पर करे थे और उसके बाद में हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप पर करा है। आज ये हमारा छठा वेबिनार है, हाउ टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। जैसे आपको पता है, webinar is being organized by Professor Rajendra Singh Smriti Sansthan. This is a trust which was incorporated in 2018 in memory of Professor Rajendra Singh. This is involved in patriotic activities among youth, spreading education for good human being, science population among youth, encouraging science research for rural Bharat, and promoting science application for masses. This is the website of the organization, and this is the email address. This is the phone number. Anybody looking for any information or thing, you can contact. This program is being sponsored by Rail EduTech Private Limited. This is a company to promote courses for employment and upskilling, promotion of railway courses for graduate engineers and diploma engineers. It is offering big data, cloud computing, and cyber security courses from 1st March 2023. This is also doing promotion of automation courses and promotion of entrepreneurship programs. This is the website of the organization. This is the email address, and this is the phone number. Anybody looking for any information can contact on these numbers. This program is also supported by Human Unity Movement. This organization is organizing and helping the needy people from all walks of life, protect child and childhood, save environment, help protecting rights of the people, awareness for the legal literacy, and counseling for marriage-related dispute and harassments. This is the email address, and this is the phone number. Anybody looking for these things, these assistance, can contact on these numbers. Today, this program is being undertaken by Mr. Anshumali Sharma. He is a well-known person in your team. Mr. Anshumali Sharma is an educationist. He has wide experience in the field of education and social welfare, presently working in KKC at Lucknow. He is acting as a counselor also. He is part of All Is Well Forum, provide telephonic as well as one-to-one counseling for the children who are under stress due to pressure of studies or for anything. Any children under any stress can ask for the help from the All Is Well Forum. Anshumali Sharma is a very good trainer. He has trained a lot of people, trained teacher on various issues related to children, youth, and life skills. Here also he is working as a trainer. He is also a social worker. He has initiated campaign against corporal punishment in government as well as private educational institutes. He is a well-known environmentalist working for pollution-free rivers, creating awareness for conservation of water and rainwater harvesting among youth and children. He is also a writer, editor, speaker on various forums. We welcome Mr. Anshumali Sharma and hand over to you for further detailing. Thank you, sir. नमस्कार, धन्यवाद सिंह साहब। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करें ये जानने के लिए। हाउ टू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। जब लाइफ स्किल्स की शुरुआत हम लोगों ने करी थी 4 हफ्ते पहले, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी को हम लोगों ने लिया था। सेल्फ अवेयरनेस की जब बात आती है तो ये हम सब जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होता। कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो हर एक की होती हैं। बस आवश्यकता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने। जब पिछली बार की बात थी तब हमने ये भी आपको बताया था कि कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जान सकते हैं, और उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि आप स्वयं अपनी जो 3 स्ट्रेंथ हैं उनको लिखें और साथ में अपने माता पिता से लिखवाएं। और यदि आप किसी शिक्षक के लगातार संपर्क में हैं, कॉलेज वॉलेज जाते हैं, क्लास ज्यादा गोल नहीं करते, तो आप उनसे भी लिखवा सकते हैं। और इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेंथ का एक
आभास हो जाएगा कि ये हमारी स्ट्रेंथ है। और फिर हमने बताया था कि उन्हीं स्ट्रेंथ को लेकर आगे यदि जीवन में चलेंगे तो सफलता के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आवश्यक यह है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को नर्चर करें, उनको पाले पोसें, उनका पालन, जैसे पालन पोषण किया जाता है ना, नर्चरिंग, जैसे पौधों को नर्चरिंग की बात की जाती है, वैसे हमें अपने स्ट्रेंथ की भी नर्चरिंग बड़ी आवश्यक है। अब सवाल यह है कि पोटेंशियल को यदि जानना है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम आगे जीवन में अपने जो हमारा विकास है, हमारी सफलता की ओर हमारे कदम हैं, वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यू हैव टू माइंड योर ABC। जैसे अल्फाबेट की शुरुआत होती है ना ABC से, तो हमें ABC का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं होगा, यहाँ पर A फॉर एटीट्यूड होगा, B फॉर बिहेवियर होगा, और C फॉर कॉन्फिडेंस या कॉम्पिटेंस होगा। ठीक है, तो ये ABC जो बच्चे पेंसिल लिए हैं वो अगर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी हम लोग इसमें अभी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि एटीट्यूड मतलब नजरिया, दृष्टिकोण, ये बहुत आवश्यक है। हमारा दृष्टिकोण यदि सही है, हमारा नजरिया यदि सही है, तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो हमने गोल सेटिंग की है अपनी स्ट्रेंथ पे बेस करके, और ये स्ट्रेंथ पे बेस करके गोल सेटिंग की बात हमने क्यों की थी? स्ट्रेंथ पे बेस करके गोल सेटिंग की बात हमने इसलिए की थी कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, तो जब हम अच्छा करते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और जब तारीफ करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम और अच्छा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम की क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें थकान भी नहीं होती, और ये थकान ना होना ही हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम नजरिए को जरूर ध्यान में रखें। नजरिया, दृष्टि हमारा ठीक है, क्योंकि जब दृष्टिकोण की बात आती है ना, तब हम एटीट्यूड में हम उसकी पॉजिटिव और नेगेटिविटी की बात भी करते हैं, सकारात्मकता की बात करते हैं। जब हमें एटीट्यूड को अपने ठीक करना है, दृष्टिकोण को ठीक करना है, तो हमें सकारात्मकता के साथ चलना पड़ेगा। और लाइफ स्किल्स की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो इन जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, और उन सकारात्मक परिवर्तनों के कारण वो सहजता के साथ जीवन यापन कर सकता है अपना। और यही विकास की ओर, सफलता की ओर उसकी सीढ़ी के सोपान होते हैं। उसके सीढ़ी में जैसे वो चढ़ते चले जाते हैं ना, वो सीढ़ियां जो लैडर, जैसे लैडर में एक स्टेप्स होते हैं, उनको सोपान बोलते हैं। फिर उसके बाद ये आवश्यक है कि हम अपने व्यवहार को, अपने नजरिए को बदलें और अपने व्यवहार को भी उसी के अनुसार परिवर्तित करें, सकारात्मकता के साथ। देखिए, सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है। जब नकारात्मकता हमारे पास आ जाती है तो हम ऊपर की जगह सीढ़ी में नीचे की तरफ चलने लगते हैं। आप लोगों ने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा ना। सांप सीढ़ी में क्या होता है, जब आप कभी ऐसे सांप के उसमें जाते हैं तो सांप आपको नीचे पहुंचा देता है, और सीढ़ी पे आते हैं तो सीढ़ी आपको ऊपर ले जा सकती है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, वो आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी, और जो निगेटिविटी है वो आपको सांप की तरह से नीचे की तरफ ले जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना हमें ये होगा कि हम किन लोगों से दोस्ती रखते हैं, हम किसकी संगत में रहते हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सकारात्मकता हमें कैसे आएगी? सकारात्मकता हमें तभी आ पाएगी जब हम सकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे। हमारे मित्र नकारात्मकता को पोषित करने वाले नहीं, सकारात्मकता को पोषित करने वाले होंगे। वो सिर्फ हमें नकारात्मक बातों की तरफ नहीं ले जाएंगे, सिर्फ उनकी तरफ इंगित नहीं करेंगे, सकारात्मकता की तरफ इंगित करेंगे, तभी हम सकारात्मक हो सकते हैं। और फिर
महत्वपूर्ण है कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस। आत्मविश्वास, जब हमारा नजरिया ठीक होता है, हमारा दृष्टिकोण ठीक होता है और हम सकारात्मकता की तरफ जब अग्रसर होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमारा आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो सफलता की ओर हमारे कदम तेजी से चलने लगते हैं। जीवन जो है ना, ये खाली स्प्रिंट 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि हमें 100 मीटर दौड़ना है और अब हम सफल हो जाएंगे। जीवन एक मैराथन की तरह से है, बहुत लंबे समय तक हमें इसमें रहना पड़ता है। और लंबे समय तक यदि आप सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो सकारात्मकता के बिना ये संभव नहीं है। लंबे समय तक सकारात्मकता तभी हो पाएगी जब आपकी जो जो आपका जो वातावरण है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो पॉजिटिव होगा। और योग्यता, हम लोगों ने 3 इडियट्स देखी है ना। 3 इडियट्स में सफलता के लिए क्या बताता है आमिर खान? क्या बताता है कि आप योग्य बनो और सफलता आपके पीछे आएगी। सफलता के पीछे मत भागो, योग्यता के पीछे भागो, कॉम्पिटेंस के पीछे भागो। जब कॉम्पिटेंस हो जाओगे तुम, तो सफलता निश्चित तौर पर तुम्हारे कदम चूमेगी। तो आत्मविश्वास, यदि आप, और आत्मविश्वास कैसे होगा? आत्मविश्वास, परिस्थितियां जब वैसी होंगी, जब वातावरण वैसा होगा, जब आप ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे और आप अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करेंगे, जब आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, तभी आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। तो इसलिए ABC का यदि हम ध्यान रखेंगे, मतलब एटीट्यूड, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस का, तो निश्चित तौर पर हम तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। नजरिए की बात करेंगे, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, वो भी यहाँ पर बता दूं कि एक बच्ची थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसकी माँ बहुत परेशान थी उसकी गुस्सा के कारण। और अक्सर ये होता है, पेरेंटिंग की ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। और खाली बच्चियों की नहीं, हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो इस कार्यक्रम में हैं, उनकी भी गुस्सा से कई बार उनके शिक्षक, उनके टीचर्स, अब पेरेंट्स, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे एग्रेशन में आ गए और एग्रेशन में आने के बाद उन्होंने शिक्षक के साथ बहुत अभद्र व्यवहार कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसकी जब जड़ में हम जाने का प्रयास करें, तो उसी के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा था। छोटी बच्ची को बहुत गुस्सा आता था। वो एक एक ऐसे गुरु के पास गए जिन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इसको देखते हैं। और उन्होंने बच्ची को कहा कि बेटा, ऐसा है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम बाहर की जो मैदान की दीवार है उसमें जाके एक कील गाड़ दिया करो। तो जब वो कील उसने लाकर उनको कुछ दे दी, जब बच्ची को गुस्सा आती वो जाकर बाहर दीवार में एक कील गाड़ देती। तो पहले दिन उसने 10 कील गाड़ी, या फिर उसको लगा कि ये तो स्वभाव दिन भर में आता था उसको। फिर उससे लगा कि ये तो हमारा इतना एफर्ट जाता है, तो हम गुस्सा कम करें। तो थोड़ा नेचुरली गुस्सा 8, 6 इस तरह से कर करके 4, 3, 1 पे आ गया। और फिर एक दिन आया जब उसने एक भी कील नहीं गाड़ी। और उन शिक्षक ने कहा कि जब एक बार ऐसा होगा कि तुम बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, तो मैं फिर तुम्हें इनाम दूंगा। तो फिर उसके बाद जब वो गई, उसने बताया कि ऐसा नहीं हो, तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा करो, अब जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उस दिन एक एक कील करके जाके निकालो। और उसने फिर जाके इस तरह से कील निकालना शुरू किया और सब कील निकल गई। फिर उसने उनको चॉकलेट दी 2-3 खाने को और कहा कि ये लो। फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा, आप जाके बाहर दीवार में देखो कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अभी तो वहां कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो। उसने थोड़ा ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि वहां कुछ निशान है, जो कील हमने गाड़ी थी उसके कुछ निशान वहां रह गए हैं। उन्होंने कहा ये निशान ऐसे ही है ना बेटा, जब तुम गुस्सा करते हो, अपने प्रियजनों से गुस्सा करते हो, तो तुम उनके दिमाग में उनके मन मस्तिष्क पे एक स्कार, इस तरह का एक दाग छोड़ जाते हो। तुम बाद में उनसे माफी मांग लो, तुम बाद में उनको प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो एक निशान है, जो एक दाग है, वो कभी मिटता नहीं है। तो इसीलिए गुस्सा करते समय हमेशा ये ध्यान रखो कि तुम किसी को दुखी मत करो। तो वो बच्ची बहुत, उसे अपनी बात पे बहुत कष्ट हुआ और जाके वो मम्मी से चिपट के बहुत रोई और उसने कहा कि अब आगे से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, हम लोग ये भी कहते हैं कि यू कांट प्लीज एवरीवन, सो प्लीज योरसेल्फ। क्योंकि अपनी सफलता के लिए 10 लोगों की 10 अपेक्षाएं आपसे होती हैं, आप सबकी अपेक्षाओं को तो पूरा नहीं कर सकते। तो आपने यदि
दूरदृष्टि के साथ अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आप उस लक्ष्य की ओर यदि आगे बढ़ेंगे तो आप लक्ष्य में सफल होंगे। लेकिन वहां पर यह भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस लक्ष्य में सफलता के लिए अपनी आगे की यात्रा के दौरान आपने किसी प्रियजन को ऐसी चोट ना दे दें कि जो उसके मन पे, उसके मस्तिष्क पे एक ऐसी अमिट छाप छोड़ जाए जिसको मिटाना मुश्किल हो। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इस चीज का ध्यान रखें। हम अपने मन की जरूर करें। और एक चीज बताऊं आपको, एक एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। एक बहुत बड़ा वायलिन वादक था, बहुत बढ़िया वायलिन बजाता था। उनसे उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने कहा हमारी सफलता का राज है अनुशासनहीनता। तो उन्होंने कहा ये क्या, सफलता का राज ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ये ऐसे होता है कि जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठता तो मुझे घर में पता चला कि इधर उधर कपड़े फैले हैं, घर में वो है, गंदगी है, तो मैं घर को सफाई करने में और सब चीज ठीक करने में और उनको ठीक तरह से करने में लग जाता, तो मुझे रियाज का टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने उस तरफ से अपने मन को कम मजबूत किया और फिर मैं रियाज का टाइम कर मिला। तो क्योंकि एक बड़े किसी लक्ष्य के पीछे यदि आप चल रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। यदि आप छोटी छोटी चीजों पे नजर गड़ाए रहेंगे तो बड़े लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसलिए ये कई बार ऐसा होता है कि हमें कई चीजें जानबूझकर छोड़नी पड़ती हैं, जानबूझकर नजरअंदाज करना पड़ता है क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, बहुत मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को बहुत आसानी के साथ ये समझा सकूं। पोटेंशियल की बात करें तो आप इसमें 9 लेटर्स हैं, POTENEIAL, पोटेंशियल। अब इन 9 लेटर्स को अगर हम डिटेल में देखें तो पहला है पी। पी का मतलब आपको यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और पेशेंस होनी पड़ेगी आप में। पैशनेट मतलब जुनून, जुनूनी होना चाहिए। तीव्र जुनून क्या होता है? तीव्र इच्छा, किसी भी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को जुनून बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा पहली फीमेल एम्प्यूटी है, पहली लड़की जिसने जिसका एक पैर कटा हुआ था और उसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। आप जानते हैं लखनऊ से बरेली जा रही थी ट्रेन में बैठकर, गुंडों ने रात में उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया और उसका एक पैर कट गया। 40 गाड़ियां वो दोनों पटरियों के बीच में पड़ी रही, अप एंड डाउन दोनों गाड़ियां जाती थी। 40 गाड़ियां इधर से उधर निकल गई, उसने गिना, उसको अपना पैर दिख रहा था नीचे और उसने ये देखा कि एक चूहा चूहा जो है उस पैर को उंगलियों के पास काट रहा है। उसको तो समझ ही नहीं आया कि चूहे के उतरने का दर्द उसे नहीं हुआ। उसे ये आभास नहीं था कि उसका पैर वो कट के अलग हो गया है ट्रेन से। वो अपना पैर ही तब तक उसे समझ रही थी। दर्द तो बहुत था, लेकिन किसी तरह से उसको लोगों ने बचाया और वो एम्स में उसका इलाज हुआ, ठीक हुई। और एम्स में जब वो इलाज ठीक हो रही थी, स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, तब उसके दिमाग में ये आया कि लगता है भगवान ने मुझे किसी बड़े काम के लिए जिंदा रखा है, वरना ट्रेन के बीच में से फेंकना, मेरा पैर कट जाना और उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो जाना, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज होकर उसको ठीक होना, इसका मतलब किसी बड़े काम के लिए। और उसने लेटे लेटे सोचा कि वो वॉलीबॉल खिलाड़ी थी वैसे, कि मैं एवरेस्ट पे विजय करूंगी एक पैर से। अब आप सोचिए, वो कहती है कि विकलांगता जो है ना वो यहाँ पर होती है, मस्तिष्क में होती है, शरीर में नहीं होती है। यदि आप मस्तिष्क से विकलांग हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और वो बछेंद्री पाल से उसके बाद मिली और बछेंद्री पाल से मिलने के बाद बछेंद्री पाल ने उसको ट्रेनिंग दी और 2011 की बात है, उसका एक्सीडेंट हुआ था और फिर 21 मई 2013 को उसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त। अब आप सोचिए कि ऐसी बच्ची जिसका पैर कट गया है, एक पैर से आदमी को चलने में दिक्कत होती है, एक प्रोस्थेटिक लेग था,
और उस प्रोस्थेटिक लेग के साथ, नकली कृत्रिम पैर के साथ उसने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो इतना जुनून पैदा करना पड़ेगा, यदि जीवन में सफल होना है तो जुनून पैदा करना पड़ेगा। तो आप सबका मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि जुनूनी हो जाओ, किसी भी चीज के लिए जुनूनी हो जाओ। जो चीज तुम्हें पसंद हो, जिसके लिए जिस चीज को तुम प्यार करते हो, उसके प्रति जुनूनी हो जाओ और कोई कसर मत छोड़ो उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और ये मत सोचो कि किस्मत तुम्हारे दरवाजे खटखटाएगी। प्रोएक्टिव होना पड़ेगा तुम्हें। तुम प्रोएक्टिव होके आगे बढ़ के स्वागत करो किस्मत का, कि वो तुम्हारे कर्मों को देखकर, वो तुम्हारे प्रयास को देखकर, वो तुम्हारी धैर्य को देखकर लगातार तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाए। धैर्य भी बहुत जरूरी है। धैर्य इसलिए जरूरी है कि जैसे आजकल वो हम लोग साईं बाबा देखते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा किस पे? अपने ऊपर श्रद्धा, अपने कर्मों पर श्रद्धा, अपने विश्वास पर श्रद्धा, अपने एफर्ट पर श्रद्धा। और सबूरी मीन्स धैर्य। जब आप अपने ऊपर श्रद्धा रखेंगे और धैर्य रखेंगे तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। निक विजिसिक एक बच्चा था जिसके कि हाथ पैर कुछ भी नहीं थे, और एक बाएं पैर में बिल्कुल छोटा सा एक बायां पैर, बिल्कुल मतलब खाली पंजा था, उसमें 2 उंगलियां थी। वो उस बच्चे ने जब थोड़ा 8 साल का हुआ, उसको स्कूल में भी सब लोग चिढ़ाते थे, उसने सुसाइड करने की सोची लेकिन बच गया। लेकिन उसके माँ बाप ने उसे इतना प्यार दिया उसमें कि उसने फिर उन्हीं पैरों से लिखना शुरू किया, उसने स्विमिंग सीखी उसने। और एक बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का वो है विजनिक, वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना। और अभी जब आप कभी उसका वीडियो अगर देखिए तो जब वो स्विमिंग भी करता है, आप सोचिए उसके हाथ पैर कुछ नहीं है लेकिन स्विमिंग भी करता है, और बहुत बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर है। जब वो बोल के आता है तो लोगों के आंसू निकल आते हैं और सब सेल्फी उसके साथ खिंचाने वालों की भीड़ लग जाती है। धैर्य क्यों जरूरी है? आपको मालूम है कि एडिसन थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा। उसने एक्सपेरिमेंट किए, वो बिजली बनाना चाहता था, बिजली का बल्ब बनाना चाहता था, और उसने 1000 बार एक्सपेरिमेंटेशन किया और वो फेल हुआ, बिजली का बल्ब जल नहीं पाया। लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया, लगातार प्रयास करता रहा। उसने सोचा कि ये इस तरीके से नहीं बनेगा लेकिन बनेगा, उसमें दृढ़ विश्वास था कि बनेगा, और कड़ी मेहनत उसने करी। और उस दृढ़ विश्वास के बल पे 1000 बार के बाद जब उसने बिजली का बल्ब बनाया तो वो जल गया, और इसलिए आज हम लोग उजाले में बैठे हुए हैं। तो धैर्य भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम सफल नहीं है, आप सोचिए ना, 1000 बार वो असफल हुआ, उसके बाद सफलता मिली। तो इसलिए 1-2 बार की असफलता से हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना चाहिए। फिर ओ से यदि हम बात करें तो ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, और नकारात्मक वातावरण से दूर रहना जरूरी है। अब मैं इसमें भी एक छोटी सी कहानी से आपको समझाना चाहूंगा। 2 दोस्त थे एक गांव में, एक छोटा एक बड़ा 7-8 साल का था, छोटा 4-5 साल का था। वो लोग गांव में जानवर चराने जाते थे। एक दिन वो जानवर चराने गए और गांव के बाहर उसमें से जो बड़ा वाला था वो कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिर गया और वहां कोई बड़ा व्यक्ति मदद के लिए नहीं था, जो छोटा बच्चा था उसने इधर उधर देखा तो वहां पे कोई जो लोग जानवर चरा के जाते हैं उनको उसको एक रस्सी मिल गई। वो एक रस्सी लेके आया और उसने वो रस्सी लटकाई, और रस्सी लटका के बड़ा वाला जो था, जो अंदर गिर गया था, जो ऐसे नहीं आ पा रहा था, उससे कहा तुम इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ, मैं खींच लेता हूँ। और उसने वो रस्सी पकड़ी और बड़ा वाला उस रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। अब सोचिए, जो 7-8 वर्ष का था वो गिरा था, जो 4-5 वर्ष का था वो उसको खींच रहा है। वो लोग डर गए, वो आए, उन्होंने पहले सोचा किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन बच्चों से जब कुछ गड़बड़ होता है तो वो किसी ना किसी को बताते हैं। उन्होंने किसी को बताया, एक चाचा को बताया, तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे संभव है, ये तो संभव ही नहीं है, और वो ये बेवकूफ बना रहे हैं बच्चे। तो वो फिर जब एक एक बुजुर्ग से उसने कहा कि देखिए ये बच्चे जो है कहानी बना रहे हैं, तो बुजुर्ग ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि छोटे वाले ने बड़े वाले को बाहर खींच लिया, ये कैसे संभव है? तो बुजुर्ग कहते हैं नहीं, ये संभव है।
कैसे संभव है चचा, क्या बात करते हो तुम भी? तो उन्होंने कहा ये ऐसे संभव है कि जिस समय वो छोटा वाला बच्चा बड़े वाले बच्चे को कुएं से बाहर खींच रहा था, उस समय वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। मतलब वहां पे उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ सकारात्मकता थी, पॉजिटिविटी थी कि वो अपने दोस्त की का जीवन बचाना चाहता था। कोई नकारात्मक वातावरण वहां पर नहीं था। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मक वातावरण से बचें, नकारात्मक लोगों की संगत से बचें, जो लोग हमेशा हमें ये कहते हैं। कई बार हमारे माता पिता भी ऐसा करने लगते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम पढ़ नहीं सकते। ऑल इज वेल फोरम की जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उसमें हम 4-5 लोग कम से कम ऐसे थे, पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी, कि जो शायद आत्महत्या कर लेते यदि उनसे हमारी बात नहीं होती। मैं एक इलाहाबाद का आपको प्रकरण बताता हूँ। एक इलाहाबाद का बच्चा था, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद वो आया था रिजल्ट उसका वो लेकर, और उसके हर चीज में 90 से ऊपर नंबर थे। बड़ा खुश था, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके 76 थे, अंग्रेजी में। वो बड़ा खुश घर आया, और मम्मी ने उसको, जब मम्मी ने उसकी मार्कशीट देखी तो मम्मी ने उसको बहुत उल्टा सीधा कहा कि तुमने नाक कटा दी हमारी, ये वो पता नहीं क्या क्या कहा। जब ऐसा होता है ना, तो कई बार हमारे पेरेंट्स भी जो हैं वो इतना कड़वा बोलते हैं कि बच्चा शायद वो कड़वा सुन के ज्यादा मेहनत करने लगेगा। वो ये नहीं सोचते कि बच्चों का मस्तिष्क कोमल होता है, और अगर उस पर कोई अमिट छाप पड़ गई तो बड़ी दिक्कत आएगी। तो लेकिन वो बच्चा हमें यही कहता था कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरी आंखों के सामने आंसू आ जाते हैं, और मम्मी के जो शब्द हैं वो मेरे कानों में गूंजते रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। हम लोगों को उससे 3-4 दिन बात करनी पड़ी, तब जाकर वो बोर्ड के एग्जाम से पहले दोबारा पढ़ने में अपना मन लगा सका। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सकारात्मकता की बात तो करें, लेकिन हम ये देखें कि हम कोई ऐसी चीज ना कहें। जैसे हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बड़ों से कुछ ऐसा ना बोले, वैसे बड़ों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कई बार हम अपने बच्चों को जब ऐसे कहते हैं ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर होता ये है कि उनमें ये विश्वास हो जाता है कि वो ये नहीं कर सकते। आपने हाथी हाथी की आपने कहानी सुनी होगी। जो हाथी होता है ना, इतना बड़ा हाथी होता है। कभी आपने हाथी को बंधे हुए देखा है किसी मैदान में? हाथी एक छोटा 1-1.5 फीट के उनका जो खूंटा होता है 1-1.5 फीट का होता है, और एक एक पैर में उनके पतली सी रस्सी बंधी होती है, और वो उससे खड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप? जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, तो उसके एक पैर से रस्सी बांध के और उसी खूंटे में बांध दी जाती है। वो प्रयास करता है उसको छुटाने का, लेकिन वो नहीं छुटा पाता। जब वो कई बार प्रयास करता है और नहीं छुटा पाता, तो उसके मन मस्तिष्क में ये चीज घर कर जाती है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि इस रस्सी के टुकड़े को मैं तोड़ सकूं और जा सकूं। ये बचपन में ये धारणा उसके मन में पैदा हो जाती है। तो जब वो बड़ा होता है, तब भी उसके मन में यही धारणा प्रबल होती है कि ये रस्सी जो है, ये जो मेरी ताकत है उसकी सीमा के बियॉन्ड है, उससे परे है, मैं इसको नहीं तोड़ सकता। और इसीलिए वो वैसे ही खड़ा रहता है। हमको बड़ा आश्चर्य होता है हम लोगों को ये देख कर कि ऐसा कैसे है, लेकिन वो बचपन में जो धारणा उसके मन में आ गई। तो इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो बचपन में बच्चे के मन में धारणा सकारात्मक ही होनी चाहिए, और कम से कम हमें अपने अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स, इन सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो बच्चों को कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे कि नकारात्मकता उनके दिमाग में पले, और वो बड़े होकर उस चीज के साथ जिए, और फिर उनके जो मार्ग है उसमें वो अवरोध का काम करें। ये भी बहुत जरूरी है कि टी से टैक्टफुल होना, व्यवहार कुशल होना जरूरी है। जैसा हमने बताया ना कि कई बार कोई कोई गलती सबसे होती है, गलती किससे नहीं होती। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं है कि हम उसके साथ कुछ भी किसी भी तरह, कई बार होता है ना, बहुत ब्लंट होने की जरूरत नहीं है हमें अपने बोलने में। चाहे बच्चे अपने बड़ों से बात कर रहे हो, चाहे बड़े अपने बच्चों से बात कर रहे हो, सम्मान, आत्मसम्मान और म्यूचुअल जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप एक दूसरे का सम्मान करें, आप वो आपका करें, आप उनका साथ, तभी दोनों की गरिमा रह पाएगी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को नाराज करने वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। क्यों नाराज करना? आप कोई
कई बार ये होता है कि हम ये कहते हैं नहीं साहब हम तो बहुत ईमानदार हैं, हम तो साफ बात करते हैं, चाहे बुरा लगे चाहे कुछ। नहीं, हमें जीवन कौशल हमें ये नहीं सिखाता कि हम बुरे लगने वाली बात लोगों से करें। ये बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद हम लोग ई पे आते हैं। ई से एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक। हमें यदि सफल होना है तो हमें एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही होना पड़ेगा। अनुत्साही लोग आगे नहीं बढ़ सकते। उत्साह किसके प्रति? अपने कार्य के प्रति उत्साह, अपने संबंधों के प्रति उत्साह, अपनी पढ़ाई के प्रति उत्साह, अपने खेल के प्रति उत्साह, जो भी हम करते हैं उसके प्रति उत्साह होना चाहिए। और जब उत्साह होता है तो ऊर्जा होती है। उत्साह नहीं होता तो ऊर्जा नहीं होती, और जब ऊर्जा नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होती है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम सफल नहीं हो पाते। ऊर्जा कैसे आती है? हमारे व्यवहार में जोश दिखना चाहिए। यदि व्यवहार में जोश दिखेगा तो ऊर्जा भी आएगी। जोश कैसे दिखेगा? आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति से ही लोगों को सहजता महसूस हो, आपकी शक्ल देख के लोगों को खुशी हो। आप जो लोग हंसते रहते हैं, जो हमेशा रोते नहीं हैं, उनको उनकी प्रेजेंस सबको अच्छी लगती है। उनकी उनकी जो उनका साथ सबको अच्छा लगता है। जब वो कहीं भी जाते हैं तो वहां एक वातावरण सहज हो जाता है और सब लोग खुश होते हैं। तो इसीलिए खुश जोश जो है वो हमारे हमारे चेहरे की खुशी से झलकना चाहिए। और फिर जो हमारे वी हैव टू नर्चर आवर ड्रीम्स। एन से जो है नर्चर, नर्चर ड्रीम्स, हमारे जो सपने हैं। और ये आपको पिछली बार भी मैंने कहा था कि हमारे जो राष्ट्रपति थे पीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था ड्रीम बिग। बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो। स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। छोटा सोचना, सपना देखना वो अपराध है। हमें अपने जीवन के साथ छोटा नहीं सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। एक बार इसमें फिर छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक इसी तरह से क्लास था, और उस क्लास में जैसे कहते हैं ना, कभी ऐसे लिखने को देते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो एक ऐसे दिया गया कि आप बड़े होके क्या चाहोगे, क्या बनना चाहोगे। तो ये इमेजिनेटिव है, इसमें जितना जो भी आप बनना चाहें उस तरह को लिखना था। तो एक बच्चे ने लिखा कि हमारे में इतने 200 एकड़ का खेत, 200 एकड़ की जमीन हो, उसमें खेती हो, ये उसने बहुत सारी चीजें लिखी। तो उनके टीचर ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा कि क्या बेवकूफी की बात तुमने लिखी, तुम अपना देख रहे हो बैकग्राउंड, तुम ये कहाँ संभव है कि तुम ये कर सकते, तुम इसको कम करो नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं सर, आपने सपना देखने को कहा है तो सपना तो मेरा यही है, और मैं अपने सपने को छोटा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक सपना है, मैं तुम्हें पास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सर आपने जो कहा है, मैं मेरा सपना तो इससे कम नहीं होगा, आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो फेल कर दीजिए। उन्होंने काट के उसको 0 दे दिया, 10 में से 0। ये वास्तविक सपना नहीं है, ये रियलिस्टिक सपना नहीं है, ये अचीवेबल सपना नहीं है। और उसके बाद काफी समय की बात है, वो टीचर थी उसके बाद एक बार ये लोग, अमेरिका का किस्सा है, ये लोग किसी फार्म हाउस में किसी के गए घूमने के लिए, वहां बच्चों को घुमाया और वहां पे बहुत वो भी लगे थे, झूले वूले भी थे, सब बच्चों को घुमाया। और उसके बाद उन्होंने जब वहां पे परमिशन के लिए गए कि हम इस स्कूल से आए हैं और ये बच्चे घूमना चाहते हैं आपका फार्म हाउस, तो उन्होंने परमिशन दे दी। और उसके बाद जब वो घूम के आए तो उन्होंने कहा अच्छा जो यहाँ के मालिक हैं उनसे जरा हमें मिलवा दीजिए, तो हम उनका धन्यवाद। नहीं, उसके बाद जब वो लौट के आए ना, उन्होंने कहा कि भाई जितने बच्चे आए उन सबको कैंटीन में खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा कैंटीन, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास खाना कितने का है, अच्छा कैंटीन में बताइए। उन्होंने कहा कि वो नहीं नहीं, आपको साहब ने कहा है कि आपको पैसा नहीं देना। उन्होंने कहा अरे भाई हमें पता चले, पैसा पता चला हमने खा लिया, समोसा खा लिया, और समोसा तो यहाँ 15 रुपए का है, हमारे पास तो 5 ही रुपए है, तो कैसे चलेगा काम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आपको खाली खाना है, साहब ने कहा है पैसा आपको देना नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, खिलाया सबको खाना। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमें जरा साहब से मिलवा भी दीजिए अपने। तो ये टीचर गई अंदर, जब टीचर गई अंदर तो इन्होंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना घुमवाया और गाड़ी में और सबको खिलाया पिलाया भी, तो आप तो बहुत अच्छे आदमी, आपको बहुत धन्यवाद देने आए हैं। तो उनने
प्रणाम किया और कहा कि मैम आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा, तो मैम ने फिर अपना चश्मा वश्मा ठीक किया कि ये कौन है भाई। तो उन्होंने देखा कि मैं फलाना फलाना। और फिर उसके बाद उसकी कुर्सी के पीछे एक बढ़िया सी एक शोकेस में उन्होंने कहा वो देख रही है मैम। तो उन्होंने कहा वो क्या है। उन्होंने कहा मैम वो कॉपी है जिसके कारण मैं आज ये बना हूं। तो उन्होंने कहा वो तो देखा कि उन्होंने कहा कि अगर आपने उस दिन मुझे इसमें काट के 0 नहीं दिया होता तो मैं आज इतनी मेहनत नहीं करता, इसके चैलेंज को नहीं लेता और आज मैं इस जगह पे नहीं होता। तो इसी आपके इसी 0 देने के कारण मैं आज यहाँ बना हूं। तो मैम को तो बड़ा पछतावा हुआ। उनका नहीं मैम, ये तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये कह के कि मैं ये नहीं सोच सकता, ये मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि मैं इसे करूं। और आपको मैं कोई आप तो ये एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे यहाँ आई। तो फिर पैसा ऐसा तो आपसे सवारी नहीं, लेकिन मैं तो आपका धन्यवाद मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके कारण ही मैं इस स्थान पर हूँ। तो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई थोड़ा गलत भी बोले ना तो उसको चैलेंज के जैसे लो और उसको 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 करके दिखा दो, है ना, सफल होके दिखा दो। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। सक्सेस से तो कोई चीज उस तरह से नहीं आगे होती है जिस तरह से सक्सेस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा टी आता है और उस टी से टैलेंट यानी कि प्रतिभा, अपनी प्रतिभा को जगाओ, समझो। और प्रतिभा कैसे जगती है, प्रतिभा कैसे आगे बढ़ती है। ये एक चौपाई है रामचरितमानस की, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरेगा, उतनी प्रतिभा तुम्हारी निखरेगी, है ना। जो अच्छा सर्जन होता है ना, जो ज्यादा ऑपरेशन करता है वही अच्छा सर्जन होता है। जो कभी कभी ऑपरेशन करता है उससे तो हाथ हिलते हैं और वो नसें काट देता है ना। तो इसीलिए अभ्यास, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट कोई नहीं है सक्सेस का। इसीलिए ये जरूरी है कि अभ्यास करो। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने पे विश्वास करो। अपने पे विश्वास करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और स्वेट मॉडर्न एक पॉजिटिव थिंकर हुए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने कहा था कि जब तक व्यक्ति ये सोचेगा कि वो कामयाब नहीं हो सकता तब तक कोई उसे कामयाबी नहीं दिला सकता। तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कामयाब हो सकते, है ना। कोई दूसरा सोचे आप कामयाब हो तो आप कामयाब नहीं होगे। आप जब स्वयं सोचोगे तभी आप कामयाब होगे। इसका मतलब यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आपको अपने में विश्वास करना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास ही नहीं करना पड़ेगा, जब आप दृढ़ निश्चय कर लेंगे, जब आप दूरदृष्टि से अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे और पक्का इरादा कर लेंगे, तो वो विश्वास अपने आप पोषित होगा और आप उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब आई से अगर हम कहते हैं तो इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासा। यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो जिज्ञासा को जागृत रखना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ये टीचरों का ये दायित्व है, हम सबका ये दायित्व है कि छात्रों की जिज्ञासाओं को पोषित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। जो जिज्ञासा छात्राएं मन में करते हैं उनको कभी ये ना कहे कि ये सवाल मत पूछो, ये क्या बेवकूफी का सवाल है। जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं उनका जवाब देना चाहिए। हो सकता है हमें उनका जवाब उस समय ना मालूम हो, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करें और उसका जवाब खोजें, खोज के उन्हें बताएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को जिज्ञासु बनाएं। जो जिज्ञासु नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो अपने, क्योंकि आगे बढ़ना है ना तो आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, है ना। जो अपनी क्षमताओं, जो अपने कंफर्ट जोन में रहता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। कंफर्ट जोन में यदि आप में 2 घंटे कार्य करने की क्षमता है और आप पूरे मेहनत के साथ आप कार्य कर रहे हैं, अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप 4 घंटे भी काम कर लोगे।
और यदि आप ये सोचोगे कि नहीं हम 2 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे के बाद तो हम थक जाते हैं, उसके बाद तो नहीं, तब फिर आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपनी जो क्षमता है उसकी आउटर लिमिट आपको नहीं मालूम। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम अपने ब्रेन का खाली 2% इस्तेमाल कर पाते हैं, 98% हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करते। और हम जब पेपर होता है तो हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सोचे तो हमें याद रहेगा, हम प्रयास तो करें। बिना लड़ाई लड़े ही हम हार मान लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें सफल होना है तो हमें अपने ब्रेन पे, अपनी मस्तिष्क की शक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने प्रयास पर विश्वास करना पड़ेगा, अपनी आस्था पर विश्वास करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और फिर इस से एटीट्यूड, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण अपना, जैसे कहते हैं ना कि नजरिया, क्योंकि जो भी चीजें हैं हमारे आसपास वो सब नजरिए पे डिपेंड करता है। यदि हम दृष्टिकोण हमारा ये है कि नहीं, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, हमारी ये लिमिट है, तो क्या हम उससे ज्यादा कर पाएंगे? कभी नहीं कर। नजरिया हमारा ऐसा हो कि हम कोई भी चीज हमसे कही जाए और हम पूरे मनोयोग से जुड़ जाएं। जब हम पूरे ही मनोयोग से जुड़ जाते हैं ना, तो हम उसमें सफल हो जाते हैं। फिर दृष्टिकोण कैसे ठीक, अच्छा दृष्टिकोण कैसे बनता है? तनाव कम होना चाहिए, कम से कम तनाव लें, अपने रिश्तों को बेहतर रखें, हर एक से रिश्ते अपने गड़बड़ ना करें, शांत मन से कार्य करें। यदि ये चीजें हम करते हैं तो हमारा नजरिया, दृष्टिकोण अच्छा रहता है, सकारात्मक रहता है। और जब भी कोई कार्य हमें करना है ना, तो बहुत डर डर के नहीं, डर से मत डरो, क्योंकि डर से आगे जीत है। एक एडवर्टाइजमेंट आता है ना, डर से मत डरो, डर के आगे जीत है। एक एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अमेरिका में एक बार एक सर्वे हुआ जिसमें कि 95 वर्ष से जो ऊपर के लोग थे उनके ऊपर ये सर्वे किया कि जो अनुभव है ना, जो अक्लमंद वो होता है जो दूसरे के अनुभव से सीखे। अपना अनुभव करे और उसके बाद फेल हो जाए, वो अक्लमंद नहीं होता है। अक्लमंद वही है जो दूसरों। तो वहां पर ये स्टडी हुई कि 95 साल के लोग हैं, बहुत विशद अनुभव है, इतना लंबा अनुभव है। उससे पूछा जाए कि यदि उनको दोबारा जीवन मिले तो वो कैसे जीना चाहें। तो उन लोगों ने जो जवाब दिए ना, उन जवाब की एनालिसिस करने के बाद 3 चीजें आई उसमें। क्या आई ये 3 चीजें? 3 चीजें आई। ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम यदि दूसरा जीवन मिले तो हम कुछ अच्छा पढ़ना चाहें। और जो अच्छा पढ़ना, कुछ भी, हमारे यहाँ तो बहुत बहुत चीजें हैं, गीता है, रामचरितमानस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत सी किताबें हैं, नॉर्मन विंसेंट पील पील की है, और बहुत सी है, मर्फी की हैं, स्वेट मॉर्डन की हैं। किताबों की कमी नहीं है, बहुत सी किताबें हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। और गीता तो मैनेजमेंट की ट्रिटाइज है। एक आईआईएम के डायरेक्टर साहब हमारे आए थे, उन्होंने कहा कि गीता तो हम लोग पढ़ाते हैं, यक्ष प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं मैनेजमेंट में। तो कुछ अच्छा पढ़ें जिससे कि हम, क्योंकि समय नहीं मिलता, हमें इतने बिजी रहते हैं हम लोग व्हाट्सएप में और इसमें उसमें, कि अच्छा पढ़ने का समय नहीं मिलता। व्हाट्सएप वाला ही पढ़ते हैं और व्हाट्सएप में कितना कचरा आता है ये हमें पता नहीं रहता, क्योंकि क्योंकि सोर्स नहीं होता उसमें। फिर दूसरी चीज जो उन्होंने कही कि रिस्क लेना चाहेंगे, यदि हमें दोबारा जीवन मिला तो रिस्क लेना चाहेंगे, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ गेन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बिना सोचे समझे रिस्क लें। रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अभी बेटा बात करेंगे बाद में। कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। और तीसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कि कुछ हम ऐसा करना चाहेंगे, ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिससे हमारे जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। लोग किसी लोग ले जाइयो ना रन के। साइलेंट कर लो भाई, किसका आवाज आ रही है? तो अरे अम्मा ऐसा इधर की बात की है जिसका मैंने। हम साइलेंट करो पूनम। ठीक है, तो कुछ ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिससे कि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद रखें। किसे याद रखते हैं लोग? राजनेता को याद रखते हैं, एक्टर को याद रखते हैं ना,
मदर टेरेसा का नाम विदेशी नहीं लेकिन भारत रत्न उनको मिला, क्योंकि जो समाज के लिए करते हैं, जो अपने लिए नहीं समाज के लिए करते हैं, उन्हें लोग याद रखते हैं। और जो कम से कम एनएसएस के लोग हैं, वो तो मैं नहीं आपकी के ऑब्जेक्टिव से आगे चलते हैं, वो समाज के लिए ज्यादा। अवंतिका कितनी खुश हो गई है सुन के कि एनएसएस के लोग समाज के लिए अच्छी बिल्कुल करते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तुम लोग के वीडियो ऑन रहते हैं तो अच्छा रहता है ना, वीडियो बंद रख के बात करते हो तो समझ नहीं आता, तो थोड़े रिएक्शंस जब मिलते हैं तो मजा आता है बात करने में। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है। फिर हम लोग लास्ट में जो एल आता है ना, वो है लव योर वर्क। जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप काउंसलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू लव योर वर्क। प्यार के अलावा कहीं सक्सेस नहीं है। जो भी काम जो मन से नहीं करोगे, अनिच्छा से करोगे, अपने काम से प्यार करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए ये एक पोटेंशियल को हमने इस तरह से हम लोग लेकर चले, क्योंकि एक बार सेल्फ अवेयरनेस पे और उस पे हम लोग बात कर चुके थे। तो फिर उसके बाद अब ये आता है हाउ टू फाइंड योर पोटेंशियल। अब कैसे कहेंगे कि कैसे हम अपने पोटेंशियल को जाने। ये तो एक जनरल हम लोगों ने पोटेंशियल की बात कर दी कि क्या है। तो अब पोटेंशियल को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है, 6-7 पॉइंट्स हैं, उन पे हम लोग ब्रीफली चर्चा कर लें, फिर सवाल जवाब ले लेंगे। आइडेंटिफाई योर इनर वॉइस। अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानिए। ठीक है, अंतरात्मा की आवाज कैसे पहचानेंगे? पिछली बार हमने बताया था कि आप जो करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाने के लिए आप एक आज सोचिए कि आज हम इस क्षेत्र में जाएंगे तो आज से 15 साल 10 साल बाद हम कहाँ पे होंगे इस क्षेत्र में, उसके बारे में सोचिए। इसका मतलब ये कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, चाहे वो आप किसी व्यक्ति से मिलके, किसी शिक्षक से मिलके, या गूगल से, कैसे भी। और उसमें हमने ये कहा था कि आप 3 स्टोरीज, आज एक स्टोरी लिखिए, कल दूसरी लिखिए, परसों तीसरी लिखिए। अब आज 3 लिखने के बाद फिर चौथी स्टोरी, मतलब चौथे दिन में आपको उन तीनों में से जो बेस्ट लगी हो, जो आपको लगे, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, वही आपकी अंतरात्मा। वो आप जब चौथी बार जब लिखना शुरू करेंगे तो जो स्टोरी आप लिखें, जो आपका मन करे, जो बिल्कुल सहजता के साथ कागज पे आप उतार दें, वही आपकी अंतरात्मा की आवाज है। समझे? जैसे कि मान लीजिए पहले दिन आपने ये लिखा कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं और अब 15 साल में हम कर्नल हो जाएंगे। फिर दूसरा आपने लिखा कि हम टीचर बनना चाहते हैं और 15 साल में हम प्रोफेसर हो जाएंगे। उसकी कहानी लिखी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और तीसरा आपने लिखा कि हम सोशल वर्क में जाना चाहते हैं और 15 साल में हम एक बच्चों के लिए होम खोलेंगे जिसमें कि हम इतने बच्चों को पढ़ाएंगे, और इस तरह से। और जब चौथी बार आपने करना शुरू किया तो आपने ये लिखा कि हम टीचर हो जाएंगे और 15 साल में प्रोफेसर बन जाएंगे, और ऐसे ऐसे किताबें पढ़ के। तो इसका मतलब टीचर बनना आपके अंतरात्मा की आवाज है, वो आपकी इनर वॉइस है, और आपको उसी क्षेत्र में अपने प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो अपने पोटेंशियल को जानने के लिए ये एक एक्सरसाइज है। यदि आप करेंगे तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचान पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। फिर मेक कॉन्शियस एफर्ट। जो आपकी अंतरात्मा की आवाज है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, उस तरफ कॉन्शियस एफर्ट कीजिए, सचेत प्रयास कीजिए, बैठे मत रहिए। पूरी हर तरफ उसको सोच के अपने प्रयास आगे बढ़ाइए, जिससे कि उस तरफ आप धीरे 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 अपने कदमों को सफलता की ओर आगे बढ़ाएं। फिर डिफाइन योर गोल्स। आप लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। लक्ष्य आपने जो दूरदृष्टि से निर्धारित किया है, उस फिर सारे आपके जो एफर्ट है उनको प्रोएक्टिव करके उस लक्ष्य की ओर अब जब आगे बढ़ेंगे तो वो लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेंगे, सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी, आप निश्चित तौर पर उसको प्राप्त कर लेंगे। अब लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण। तो इसमें सेट माइलस्टोन्स। आपको माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे। आपको छोटे छोटे लक्ष्यों में उसको बांटना पड़ेगा, टाइम फ्रेम निर्धारित करना पड़ेगा। आपने तय किया कि आप 15 साल में प्रोफेसर होंगे,
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पीजी करना पड़ेगा, है ना, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करना है। फिर उसके बाद आपको यूजीसी या नेट का इम्तिहान देना पड़ेगा, है ना, उसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद आप इन लक्ष्य को कैसे निर्धारित करेंगे कि आप एक साल में आपको कितनी चीजें पढ़नी है, वो आपने तय किया, है ना। फिर उसके बाद आप 6 महीने, क्योंकि आप एक साल में जो आपने अपना निर्धारित किया है जितना भी कार्य करने को, अगर एक साल बाद आप उसको देखेंगे और आपको लगेगा कि आप इतना नहीं कर पाए, तो क्या आप पीछे आ सकते हैं? समय में पीछे नहीं जा सकते। तो जरूरी है कि एक साल के लक्ष्य को 6 महीने में करिए। 6 महीने के मतलब डिवाइड कर लीजिए। एक साल में यदि आपको 30 चीजें पढ़नी है, 30 किताबें पढ़नी है, तो आप 6 महीने में 15 किताबें, फिर उसके बाद आप 3 महीने में 8 किताबें, फिर उसके बाद 1 महीने में 3 किताबें, इस तरह से। तो 1 महीने और फिर उसको 15 दिन में और 1 हफ्ते में। पता चला कि 1 हफ्ते में आपके पास ये आया कि आप 1 किताब 1 हफ्ते में पढ़ेंगे। तो 1 हफ्ते बाद आप जब उसको आप रिव्यू करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने लक्ष्य में सही दिशा से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि एक साल तक आप उसमें कोई विचार ना करें, आप उसको रिव्यू ना करें, तो फिर एक साल बाद बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटिए, छोटे छोटे टारगेट्स में फिक्स कर लीजिए और छोटे छोटे समय में उसको रिव्यू करते रहिए कि क्या आप अपने लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य जो है, स्मॉल जो माइलस्टोन्स आपने तय किए हैं, क्या आप उनको पूरा कर पा रहे हैं। यदि आप स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स को, जैसे हम कभी सफर में जाते हैं ना, जब हम देखते हैं कि तो हम अपनी गाड़ी की स्पीड देखते हैं कि कितनी स्पीड है, हमें 3 घंटे में पहुंचना है, 3 घंटे में हमें अगर 300 किलोमीटर, 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंचना है। हालांकि इतनी तेज गाड़ी चलानी नहीं चाहिए, 80 किलोमीटर से तेज नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपने किसी कारण से पहुंचना ही है और आपने देखा कि आप आधे घंटे में खाली 15 किलोमीटर चले हैं, तो नहीं पहुंच पाएंगे ना आप। तो आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपने तुरंत नहीं देखा तो बाद में 200 किलोमीटर पे तो नहीं चलाओगे ना गाड़ी। तो इसलिए यदि आपने पहले ही आधे घंटे में अपनी स्पीड को चेक कर लिया, तो उसके बाद आप अपनी स्पीड को तेज करके सही समय पे सही जगह जगह पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जो अपने लक्ष्य हैं उनको ठीक तरह से निर्धारित करके और छोटे छोटे माइलस्टोन्स, बेबी स्टेप्स इनको कहते हैं। एक बड़ा आपने जो जायंट स्टेप तय किया है कि हम इस तरफ, इस दिशा में जाएंगे, इतना बड़ा स्टेप हमें लेना है, लेकिन बेबी स्टेप्स क्या होंगे वो हम इस तरह से निर्धारित कर सकते हैं। एक और चीज है, ये जरूरी नहीं है कि जो हम लक्ष्य निर्धारित करें, जिस दिशा में हम चलें उस दिशा में सफल ही हो। कभी कभी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पाते, हम फेल हो जाते हैं, हमें असफलता मिलती है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर फेल्योर्स। आपको फेल्योर से, आपको असफलता से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि असफलता क्यों मिलती है आप जानते हैं? सफलता इसलिए मिलती है कि आप उस चीज को नई तरीके से करें, क्योंकि जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वो उसके लिए बेस्ट तरीका नहीं है। इसलिए भगवान ने आपको असफल किया है। और आप जब नई तरीके से उसको देखते हैं, जैसे हम लोग कई बार टीचर से अपने कहते हैं ना कि हमें ये चीज करनी है, वो समझ में नहीं आया, टीचर कहते हैं अच्छा नहीं समझ में आया तो चलो हम दूसरी तरह से समझाते हैं। तो वो दूसरी तरह से समझाती है, तब हमें समझ में आता है। तो इसी तरह से जब कोई, हम लोग किसी चीज को जब बेस्ट तरीके से नहीं करते हैं, तो भगवान हमें असफल इसलिए करते हैं कि उसको करने का बेस्ट तरीका कोई दूसरा है। और जब हम एक बार असफल होते हैं तो हम दूसरा तरीका जो तय करते हैं, और जब दूसरे तरीके से उस चीज को करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी असफलता से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि शायद हमारे एफर्ट सही दिशा में सही गति से नहीं था, इसको सही दिशा में सही गति से करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सेलिब्रेट योर सक्सेस। हमें अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। अब ये छोटी छोटी क्या से क्या मतलब हुआ? जैसे सुबह उठने को कहा जाता है कि सुबह उठ के पढ़ो, बड़ा अच्छा होता है। जैसे दिन में पढ़ने से सुबह 3 गुना अच्छी रिसेप्टिव पावर रहती है, 3 गुना अच्छी। यदि आप दिन में कोई, जितनी देर में आप 1 पेज पढ़ोगे, सुबह के सुबह शांत माहौल में आप 3 पेज पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब जिस दिन आप सुबह उठ के आपने 3 पेज पढ़ लिए,
उस दिन कह दो कि अच्छा ये तो अब आज सुबह उठ के चाय के साथ 2 बिस्किट भी खाएंगे, है ना, वो क्रीम वाले बिस्किट। ठीक है, अच्छा है, उसी में छोटी छोटी बातों में अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। रोज सुबह देर से सो के उठते हैं, एक दिन अगर 5 बजे उठ गए तो कहा वाह मम्मी आज तो 5 बजे उठ गए, आज तो दूध में बॉर्नवीटा 2 चम्मच डालना आज, है ना। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें। और इसी तरह से जब और भी चीजें होती हैं, जब जो आपने तय किया कि हम 15 दिन में ये काम करेंगे, आपने कर लिया, तो अब ऐसे ही हाथ ले जाओ, अपनी पीठ ठोको, वाह वाह शाबाश शाबाश अवंतिका, वेरी गुड, संदीप बहुत बढ़िया, है ना, अपना इस तरह से। मैं कहूँ शाबाश अंशुमाली, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से अपनी पीठ भी ठोकनी चाहिए, उससे उत्साह बढ़ा रहता है, बढ़ता है। और नहीं, जब बिल्कुल एक डल लाइफ नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपनी छोटी छोटी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना चाहिए। ठीक है, तो फिर जब बड़ी जीत होगी तो बड़ा जश्न मनेगा, उसमें हमें भी बुलाना, उसमें हम भी आएंगे, है ना। ठीक है, तो जश्न मनाओगे ना? अरे बताओ भाई, कोई मनाएगा कि नहीं? अवंतिका बोलो जल्दी से। यस सर, यस सर, हाँ बस, छोटी छोटी हम जीत का, जरूर मनाएंगे। हाँ छोटी छोटी जीत का जश्न मनाओ, तभी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो सकोगे। फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसका हम ध्यान दें, सेट योर ओन बेंचमार्क। अपने मापदंड खुद बनाइए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। दूसरों से अपने को कंपेयर मत कीजिए, अपने बेंचमार्क खुद बनाइए, अपने मापदंड खुद बनाइए। क्योंकि जब आप कंपेयर करते हैं ना, तो कई बार हताशा होती है, ईर्ष्या होती है। आप कैसा कर रहे हैं, आप किस लेवल पे हैं, उससे आगे बढ़िए। क्योंकि आपकी ग्रोथ उसी पे है कि आप अपने लेवल से कितना आगे कितने समय में बढ़ सकते हैं। जितनी आवश्यकता जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके लिए है। तो अपने बेंचमार्क बनाइए। आज हमने 5 पेज पढ़े, तो कल हम 6 पढ़ेंगे। अब अगर अवंतिका एक दिन में 10 पेज पढ़ रही हैं, तो हम 5 से 10 तो नहीं कर लेंगे ना। हमने अपना 5 किया, फिर उससे 6 करें, फिर 7 करें, धीरे धीरे करके हम 1 महीने में 10 पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम आज से सोचेंगे अरे अवंतिका तो 10 पढ़ रही है, हम तो 5 ही पढ़ रहे हैं, हम तो बेवकूफ हैं बिल्कुल, तब तो नहीं चलेगा भाई। तो अपने मापदंड खुद बनाइए, अपनी परफॉर्मेंस से बेटर करिए, दूसरे से अपने को कंपेयर मत कीजिए। और ये टीचर्स के लिए भी ये है कि हर एक जो तेज बच्चा है वो तेज है, उसका उसकी स्पीड अलग है, उसकी क्षमता अलग है, सबकी क्षमता अलग है। तो हमें अपने से कंपैरिजन करना चाहिए, हमें अपने से अपने को चैलेंज करके अपनी स्पीड को आगे बढ़ाना चाहिए, दूसरे से नहीं करना चाहिए। ठीक है, डोंट कंपेयर विद अदर्स। ये माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो चिढ़ होती है। अरे उन्होंने कह दिया वो देखो शर्मा जी का लड़का तो इतना तेज है, तुम्हारे तो इतने नंबर, उसके तो इतने। अब हम जितना हो ना, हमें गुस्सा आ जाएगी, भाई बस शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लड़का करते रहते हैं हमेशा, हमको हम जो है वो उसके हिसाब से। तो अब हर एक की कैपेसिटी है, हर एक की स्पीड है, उसके हिसाब से चलना चाहिए और अपने मापदंड ही बनाने चाहिए। ठीक है, एक तो इसके बाद में कुछ कुछ लोगों ने जो बातें कही हैं पोटेंशियल के बारे में, उस 2-3 ऐसे कोटेशंस को लेकर उस पर चर्चा कर ले, फिर सवाल ले लेंगे। The only person you are destined to become is the person you decide to be. मतलब जो व्यक्ति आपको बनना है, आप वही बन सकते हैं, आपकी किस्मत में वही बनना लिखा है जो आप बनना तय करते हैं। एमर्सन ने ये कहा था, आप जो बनना तय नहीं करते हैं वो आप बन नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? कभी भी आप वैसा नहीं बन सकते जो आप तय ना करो। तो इसलिए पहले आपको ये मन में विश्वास करना पड़ेगा, मस्तिष्क में विश्वास करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक वो नहीं कर सकते। ग्रेट वर्क इज डन बाय द पीपल हु आर नॉट अफ्रेड टू बी ग्रेट। बड़े बड़े काम उन्हीं लोगों ने किया है जो बड़ा होने से डरते नहीं थे। बहुत से लोग बड़े होने से डरते हैं, अरे अगर हम ये हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर हम कहीं गाड़ी से हम फिर सुबह जल्दी 6 बजे ही उठना पड़ेगा, रात में 10 बजे तक सो नहीं पाएंगे, कोई ना कोई मिलने आता रहेगा। जब ये डरोगे तो फिर बड़े हो गए नहीं, फिर क्या, जैसे हो वैसे ही रहो।
अगर बड़े होना है तो बड़े होने के लिए सोचना पड़ेगा। There is no man living who is not capable of doing more than he thinks he can do. हेनरी फोर्ड जिन्होंने गाड़ी बनाई थी ना, उन्होंने कहा था कोई भी ऐसा जीवित व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो जितना सोचता है उससे ज्यादा ना कर सकता हो, है ना। हर एक व्यक्ति की क्षमता जितना सोच रहा है उससे ज्यादा करने की है, पर कब? जब वो एक कंसर्टेड एफर्ट उस दिशा में करे, है ना, पूरे मनोयोग से, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ काम करेगा तो वो जो टारगेट होते हैं ना, उस टारगेट से आगे भी जा सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, तुम में से कोई भी, चाहे दिव्या हो, चाहे संदीप हो, चाहे प्रिया हो, चाहे रामिका, अवंतिका हो, हर एक जना जितना मेहनत करता है और जो सोचता है उसी समय में उससे ज्यादा करने की उसमें क्षमता है। लेकिन वो उसके करने के लिए जब जोश के साथ, मनोयोग के साथ, उत्साह के साथ, एकाग्रता के साथ प्रयास करेंगे तभी ये संभव होगा। Fear and self-doubt have always been the greatest enemy of human potential. डर और अपनी क्षमता पे भरोसा ना करना, यही तुम्हारे सबसे दो बड़े एनिमी हैं। डर और अपनी फियर एंड सेल्फ डाउट, अपने पे डाउट मत करो, तुम्हारी क्षमता अपार है ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्या कहा था, शक्ति के बारे में, थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। अगर तुम शक्ति के बारे में विचार करोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे, और कमजोरी के बारे में विचार करोगे तो कमजोर बन जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए विचार करना चाहिए, हमेशा शक्ति का विचार करो। ठीक है, कभी कमजोरी का विचार मत करो, अरे हमें तो ये, हम तो चल नहीं सकते, हम तो ये 10 कदम चलने में थकने लगते हैं, है ना। नहीं, कितना भी चल सकते हैं, जब जरूरत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सूनर और लेटर दोज हु विन आर दोज हु थिंक दे कैन। आज या कल जीतता वही है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है, जो सोचता नहीं है वो जीत नहीं सकता। तो अपने पोटेंशियल को यदि आपको समझना है, तो जो मैंने कहा कि आप इस चीजों का ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल क्या है ये ध्यान रखेंगे, और फिर उसके बाद आप अपने इनर वॉइस को पहचानेंगे, उस दिशा में कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, माइलस्टोन छोटे छोटे सेट करेंगे, फेल्योर्स को एक्सेप्ट करेंगे, उनको सुधारने की दिशा में काम करेंगे, दूसरी तरह से उनको प्रयास करेंगे, अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करेंगे, और अपने बेंचमार्क खुद तय करेंगे, किसी दूसरे को तय नहीं करने देंगे। यदि आप ये करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। ठीक है, अब कोई सवाल है बच्चों तो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। हाँ बताओ, कोई सवाल? सर सर जैसे आपने कहा ना कि कोई जैसे हमें 10 बुक पढ़नी है तो हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, तो उसको कैसे कैसे उसको मैनेज करें ना। यही हम लोग गलत करते हैं कि हम जैसे हमारा एडमिशन हुआ, हमें बुक्स आ गई, हमारी कॉपीज आ गई, तो हम सोचते हैं बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये वाली बुक ले लेंगे, एक दिन खोलते हैं, फिर उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद नहीं, ये वाली पेन ले ले, ये वाली कॉपी ले ले, तब और अच्छे से फेयर कॉपी में लिखेंगे। 2 दिन बाद वही होता है। फिर हम लोग कहते हैं अरे अभी तो इतना टाइम है एग्जाम को, अभी तो इतना करते करते थोड़ा सा टाइम आ जाता है। अगर उसको शुरू से ही डिवाइड पहले से ही कर ले तो लास्ट टाइम में इतना टेंशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात है। ये यही तो समझना है, यही तो समझाना है कि छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे, है ना। 10 किताबें हैं, जैसे 5। जैसे अभी एग्जाम आ गया है, तो जो कुछ कुछ चीजें जहां जहां लापरवाही हुई है वो चीज दिख रही है, उसका अब टेंशन आ रहा है। कोई बात नहीं, अब जितना देखो बेटा, अब जितना समय बचा है, मान लो 10 हफ्ता भर बचा है, और उस हफ्ते में अगर अब तुम्हें अपनी देखो वही है ना, अगर समय से कर लेते तो तुम थोड़ा थोड़ा करके काम चला सकते थे। सर अगर अप्रैल में 2 एग्जाम है, घंटे, अभी थोड़ा टाइम है।
अप्रैल हाँ, में तो अभी मेरा यही थोड़ा कहना है टाइम। कि अगर पहले तुम 2 घंटा पर डे पढ़ के काम चला सकते थे, तो अभी 8 घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा, तब पूरा होगा। लेकिन अब अगर 8 घंटा नहीं पढ़ोगे, तो फिर वो 2 दिन बाद वो 10 हो जाएगा, फिर 4 दिन बाद वो 12 हो जाएगा, जो नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए इस हिसाब से करना पड़ेगा। यस सर, और बाकी कुछ मेरे बच्चे सारे सवालों के जवाब मिल गए इस पूरे सेशन में, सब मिल गए? समझ आ गया था। चलो, गुड गुड। और कोई बच्चा? Good और evening, कोई sir. सवाल? हाँ, Sir, I want to know about the we can motivated ourselves continuously. So please can guide you. कंटिन्यूअस मोटिवेशन। बेटा, जैसे Yes. हमने बताया ना कि कंटिन्यूअस मोटिवेशन सेल्फ से ही आएगा। मैंने कहा ना, स्मॉल स्टेप्स में जो भी तुमने लक्ष्य निर्धारित किया है, वट एवर गोल यू हैव डिसाइडेड, उस डायरेक्शन में जो तुमने लंबा, जो लॉन्ग टर्म गोल है, उसको शॉर्ट टर्म गोल में, जैसे मैंने कहा ना, 1 साल में जो करना है, 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 1 हफ्ते में, इस तरह से कर लो, तो तुम टाइमली उसको चेक करते रहोगे। और जब छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स जो है, बेबी स्टेप्स में तुम उसको पूरा करोगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल रेज होगा, हाई होगा, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस अपने कार्यों से ही बढ़ाना है, खाली बातों से नहीं बढ़ाना है। हम अच्छी अच्छी बातें करें, तुम सुनो और उसके बाद जाके कुछ प्रयास नहीं करो, तो नहीं होगा। क्योंकि ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। Yes, और sir. Yes, sir. इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुदान। जो बहुत कुंद बुद्धि भी होता है, वो भी यदि बार बार प्रयास करता है, तो वो सफल हो ही जाता है, उसको सफलता मिल ही जाती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बेटा। और थोड़ा, जब जिस समय, अब जैसे एग्जाम का समय आ रहा है, इस समय Yes, थोड़ा sir. थोड़ा उपवास करो। तो उपवास, ये फास्ट, ये कैसा फास्ट करने को सर कह रहे हैं? हम तो नास्तिक आदमी है, हमको फास्ट क्यों करें? हम फास्ट कह रहे हैं, लेकिन ये फास्ट हम मोबाइल का फास्ट कह रहे हैं और टीवी का फास्ट कह रहे हैं। मोबाइल और टीवी देखना कुछ दिन के लिए छोड़ दो, है ना। Yes, sir. मोबाइल और Yes, sir. टीवी छोड़ दो जितना समय है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। एग्जाम शुरू हो गए हैं, 1-1.5 महीने एग्जाम में ही लगने हैं। तो अब, Yes, पहले sir. मैंने बताया ना कि यदि पर डे 2 घंटे पढ़ते होते, तो बहुत आराम से 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे से भी काम चल जाता। लेकिन अब क्योंकि 15-20 दिन बचे हैं, तो अब तो 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा बेटा। और अगर उसमें 1 घंटा सुबह शाम टीवी और मोबाइल में लगा दोगे, तो फिर कैसे होगा ना काम। एकाग्रता भी भंग होती है उससे। एकाग्रता Yes, बहुत sir. जरूरी है। सही दिशा में प्रयास करोगे, एकाग्रता से करोगे, और मन जब एकाग्र होता है ना, तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है। Yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. और कोई बच्चा? एनीवन एल्स? प्रिया, दिव्या, कोई और सवाल तो नहीं है? हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ साहिल। साहिल जयसवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ, बताओ साहिल। थैंक्स फॉर दिस सुपर वेबिनार, इंफॉर्मेटिव। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जब मैं बताओ। बचपन में था, तो मेरे को क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता था। मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है, तो मैं सोचा था मैं इसमें करियर बनाऊंगा। बट व्हेन वी आई स्टार्टेड टू, पता चला नहीं, ये तो मेरा करियर बन ही नहीं सकता है। टू हाउ टू रिकॉग्नाइज कि जो मेरा हॉबीज जैसा, जो मेरे को पैशन लग रहा है, यही मेरा प्रोफेशनल बन सकता है या नहीं? देखो, उसका तरीका साहिल सिर्फ ये है कि मैंने कहा, एक तो जिस चीज के लिए तुम जुनूनी हो, जिसके लिए पैशन हो, पर उसमें करना है ट्रायल एंड एरर ही होगा। आपको 2 चीजें मान लो आपको लगती हैं, आपको लगता है एक म्यूजिक, और दूसरा आपको लगता है कंप्यूटर। तो अगर आपको म्यूजिक लगता है, आप म्यूजिक सीखिए। अभी अभी तो क्या है, कैरियर को आ गया है, बहुत चीजें हैं जिसके साथ आप प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए, और आप ये उस दिशा में आप 3-4-5-6 महीने प्रयास करिए। और यदि आपको लगता है कि आप उसमें ठीक से चल रहे हैं, आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस से लोग खुश हो रहे हैं, तो आप यू कैन कंटिन्यू विद दैट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, तो अब हमें फिर कंप्यूटर, दूसरा आपका ऑप्शन कंप्यूटर है, तो फिर आप कंप्यूटर में मन लगाइए। ये तो आपको मन लगा के, यू हैव टू रिव्यू लेटर ऑन विद इन फ्यू मंथ्स कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, है ना। क्योंकि तो परफॉर्म, मैंने पैशन एक क्रिकेट में सर चीज है, काफी अप्लाई परफॉर्मेंस किया। दूसरी चीज। हाँ बेटा। क्रिकेट में मैंने सर काफी मेहनत की, अप्लाई किया, पर कुछ रिजल्ट्स निकले नहीं। बट मैंने थोड़ी सी मेहनत में ही टेक्नोलॉजी मेरे अच्छे रिजल्ट्स आ गए। आई कंटिन्यू विद दैट। यस, एग्जैक्टली, गुड। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि तुम, वो तुम्हारे 2 चीजें तुम्हारे दिमाग में थी। पहली चीज में तुम उतना नहीं हो पाए, कोई बात नहीं।
अब इस फील्ड में क्योंकि इसमें अच्छा करा, जल्दी अच्छा कर लिया, अब तुम्हें इससे प्यार पैदा करना पड़ेगा। अभी प्यार करते हो टेक्नोलॉजी से कि नहीं? बहुत सर। बहुत करते हो ना, बस फिर क्या है, तो अब तो सही रास्ते पे हो। फिर टेक्नोलॉजी हाँ। से प्यार कर रहे हो तो ये बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि सर मैं असली एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जी पैशन से बातें बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन ये मेरा पैशन है ये कैसे पता करें? करेक्ट सर। दिस इज द, ये मैं इसमें सोल्यूशन बता रहा हूँ। जी हाँ इसमें एक बात तो ये है कि एक्चुअली पैशन वर्ड है, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई। इसका हिंदी मीनिंग पता है आदमी को ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैडम गीता रानी जी इसको वो करेंगी कि पैशन को वास्तव में कैसे पहचाना जाए, और ये मेरा पैशन है कि नहीं है। होता है कि हम ग्लैमर को पैशन समझ लेते हैं कि फिल्म एक्टर को बहुत पैसे Correct. मिलते हैं, बहुत जगह दिखाई पड़ता है, तो हमारा भी पैशन हो गया। पैशन की जो एक पहचान जो मुझे समझ आई, मैं वो बता रहा हूँ। आई मे नॉट बी 100% करेक्ट। जो काम आप बिना दिमाग पर जोर डाले हुए कर सकते हैं, यू आर पैशनेट अबाउट दैट। दिस इज वन वेरी बेसिक एसिड टेस्ट फॉर दिस। अब वो बिना दिमाग लगाए कैसे कैसे कर सकते हैं? तो मैं जैसे आपको एक उसका और उदाहरण बताता हूँ। जो काम आप गाना गाते हुए कर सकते हो, जैसे आप मैच करते हो और गाना गा रहे हो और मैच कर रहे हो, और मैच हो रही है। ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग आपकी हो रही है और गाना गा रहे हो, मतलब आपका दिमाग जो है, यू आर नॉट पुटिंग अप योर हार्ड माइंड ऑन द सब्जेक्ट फॉर डूइंग दी वर्क। अगर ये आप कोई काम, अगर इसको कभी ट्राई करके देखिए, मैंने तो इसको बहुत देखा ट्राई करके, कि आप कोई काम कर रहे हो और जिसमें आप बिल्कुल यू आर लॉस्ट इन दैट, टाइम की चिंता नहीं है, भूख नहीं लग रही है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट। तो ये पैशन की एक पहचान जो है वो मुझे समझ में आई। जिस बात में आप बिना दिमाग, अच्छा कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे अंग्रेजी नहीं आती, अब उसका व्याकरण पढ़ते पढ़ते 15 मिनट में ही दिमाग का दही हो जाता है, तो लगेगा भाई ये हमारे बस की बात नहीं। जिस काम में आपको 2 घंटे तक लगे, अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, आई कैन सिट हाफ एन आवर मोर, वो चीज पैशन है आपकी। ये मेरा अपना अनुभव मैं बता। वही मैंने कहा ना कि जिस काम में थकानी ना हो, हाँ, जिसको करने में कोई थकानी नहीं हो रही है, मस्ती से चल रहा है वो, तो मस्ती से चल रहा है, वो वो मस्ती आपका जो पैशन चल है। रहा है वो तो ये पैशन जरूर ध्यान रखिए पैशन को पहचाने कैसे। तो इन पहचाने। आमतौर पर क्या होता है, पैशन को और ग्लैमर को लोग मिक्स कर देते हैं कि भाई उनको देखा कि वो उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया किसी चीज में, तो हमने कहा अच्छा ये भी हमारा भी पैशन यही है। तो ये जो चीज है ना, अच्छा हर आदमी का एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपने ये पोटेंशियल वाली बात कही, वो ये है कि जो गुलाब का फूल है वो गुलाब का फूल है, चंपा का फूल चंपा का फूल है, गेंदे का फूल गेंदे का फूल है। गेंदे का फूल अगर गुलाब बनने की कोशिश करेगा तो ना वो गुलाब बनेगा ना गेंदा रह जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सबकी अपनी खूबी हो सकता है गुलाब थोड़ा महंगा बिकता हो, गेंदा थोड़ा सस्ता बिकता हो, कोई बात नहीं, बट अगर आप गेंदा बन के भी अगर बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट। भगवान के ऊपर दोनों चढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अगर गुलाब नहीं हो तो गेंदा नहीं चढ़ता है। गेंदा और गुलाब दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, ईश्वर ने बनाया है। आपको केवल ये देखना है कि मैं जिस काम के लिए बना हूं, मैं जो काम मेरे लिए है, जो मेरा स्वभाव में है, उस काम को मैं अगर कर रहा हूं, वही काम आप अच्छा कर पाओगे। दूसरे काम को अगर आप अडॉप्ट करने की कोशिश करोगे कि भाई स्वभाव तो है मेरा पढ़ने पढ़ाने का और मैं लग गया क्रिकेट खेलने में, नहीं हुआ। तो ये अपने स्वभाव को पहचानना ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जो मुझे समझ आ रही बात, मतलब विद द एक्सपीरियंस आई कैन टेल कि ये चीज जो है। और तीसरी बात, जो माता पिता हैं उन लोगों के लिए मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर अपनी एम्बिशन को ना ला दें। हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए। लड़के को वो बनाइए जो वो बनना चाहता है। उसको अगर आप, हम डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए, अगर ये आपने एम्बिशन बनाई तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल एक एक बीज को जिसके अंदर पीपल बनने की प्रतिभा है, वो उसको आप झाड़ी बना के छोड़ दोगे। ये मेरा एक इसमें बहुत सुझाव है माता पिता के लिए, क्योंकि क्या है कि सर जो बच्चे जो कुछ करते हैं उनमें माता पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। हम लोग क्या बच्चों को तो सिखाते हैं, लेकिन माता पिता को सिखाते भी नहीं और माता पिता सीखना भी नहीं चाहते। वो समझते हैं बस हमने तो जो समझ लिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो माता पिता को भी ये समझना है कि बच्चा है, बच्चा बीज है, बीज में पीपल बनने का और बरगद बनने का पोटेंशियल है। आप अगर उसको जबरदस्ती गन्ने का वो बनाना चाहो कि नहीं गन्ने का पेड़ बन जाए, तो बस वो समझो फिर वो झाड़ बनेगा, वो ना पेड़ बनेगा ना गन्ना बनेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जो ये मैं जो बात एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उससे ये बात कह सकता हूँ।
ये सर मतलब आस्था गौरव। हाँ ऐसे हाँ, बताओ अवंतिका, सर बताओ क्या कहना है। मैंने ये देखा है कि मैं अब तक जो देखते आ रही हूँ कि पेरेंट्स जब भी उनको अपने बच्चों को एग्जाम्पल देना होता है तो वो किसी और का एग्जाम्पल देते हैं। उन्होंने ऐसा किया था, वो ऐसे किए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ऐसा वर्क करूँ कि आगे चल के मैं अपना एग्जाम्पल दूं गुड, वेरी गुड, कि बहुत ये बढ़िया, किया होना तो चाहिए। ऐसे किया। नहीं, तुमको सर ये अपना चैट एग्जाम्पल नहीं देना, तुम्हारा एग्जाम्पल दूसरे ही लोग देंगे। तुम दूसरे सर के लिए चैट एग्जाम्पल में बन सर सकती हो। देखो सर सुनो, चैट एक बहुत बड़ा फर्क है। तुम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकती हो, लेकिन एग्जाम्पल तुम्हारा जो है वो दूसरे ही लोग देंगे। पहली बात तो ये है, यू कैन नॉट गिव योर ओन एग्जाम्पल, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो आप काम करो, माता पिता, मैंने जो बताया ना कि माता पिता दूसरे के जैसा बनाना चाहते हैं। अगर लड़के को ये पता लग जाए कि मेरा ये स्वभाव और मैं यही करूंगा, अच्छा माता पिता की चिंता क्या है? अच्छी शादी नहीं होगी, अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। वो माता पिता की अपनी एक 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 जेनेरिक चिंता है कि लड़का अच्छा पढ़ जाए, खूब तनख्वाह मिलने लगे, अच्छी जगह शादी हो जाए, वगैरह वगैरह। ये जो माता पिता की चिंता है, इस बात के लिए तुम्हें उन्हें निश्चिंत करना पड़ेगा कि माताजी पिताजी, मैं ये काम करके भी ये काम कर सकता हूं जो आपके सपने हैं, अच्छी शादी, अच्छे पैसे। ये बात आपको अपने कॉन्फिडेंस से उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तभी वो आपको यस सर। छोड़ेगा। अदरवाइज वो जानते हैं कि ये इसको जो है वो कौन से स्क्रू में कसना है, उसी में कसते रहेंगे, ताकि वो जो है वो बस ऐसा बन जाए। उन्होंने अपना एक सांचा बना लिया है, उसी सांचे में वो ढालना चाहते हैं कि जैसे उसका सांचा था, पड़ोसी का बेटा आईएएस बन गया तो मेरा बेटा भी आईएएस बन जाए। मैंने जो ये जो चीज है ना, बिना इस बात को जाने हुए कि भैया वो पीपल का पेड़ था, तुम्हारा बेटा बरगद का पेड़ बनना चाहता है, तो बरगद और पीपल दोनों की खूबी है, बेर के पेड़ की भी खूबी है, नीम के पेड़ की भी खूबी है। ये बात माता पिता को कन्विंस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि बेर नींबू सबकी इंपॉर्टेंस है। केवल पीपल का पेड़ ही नहीं पूजा जाता, पेड़ पेड़ क्या नाम है, आंवले का पेड़ भी पूजा जाता है आंवला अष्टमी में। ये बात अगर समझ में आ जाए तो फिर काम बन सकता है। अब इसमें माता पिता को भी सर समझना पड़ेगा थोड़ा। सर ये चैट में ना सर कोई बार बार मतलब कोई इंटरनेशनल है, वो हम लोग की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो बार बार कह रहे हैं कि इसे इंग्लिश में भी थोड़ा हमें चैट में समझाया जाए। चैट में तो कोई हाँ नहीं सर है। देखिए, नहीं सर चैट में देख मैसेज आए हुए हैं, समवन फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री, एंड वो इंग्लिश में सुनना चाह रहे थे इसको। He unable to समझना चाहते understand Hindi. He was अच्छा, requesting in starting to the speaker to speak in English, to attend this webinar in English. चलो इनको इनका वो नोट कर लो, इनको बता देंगे कि भैया ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी सीखनी पड़ेगी। और ये है कोई नंदा जी, तो उनको कहना पड़े भाई ठीक है, कांट हेल्प। आस्था गौरव मैम, आप अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके ऐसे क्वेश्चन कर सकती हैं। हाउ टू हाँ, हाउ टू बिकम एन एक्टर। आस्था, करेक्ट, आस्था, लाइव है, आस्था, अनम्यूट प्लीज करके। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ आस्था, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कहाँ से हैं आप आस्था? नेटवर्क नेटवर्क इशू। है। ओके, देखो आस्था, ऐसा है कि आप एक्टिंग करना चाहते हो, अभी कुछ उसमें और बातों की आवश्यकता होगी। खैर, मैं ये बताता हूँ कि एक्टिंग करना, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि क्या आपका पैशन है वो, है ना। और उसके बाद उसमें एक्टिंग बहुत सिस्टमेटिक वे में आपको चलना पड़ेगा। पहले किस जगह पे है इस पे डिपेंड करता है कि आपके शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वहाँ रंगमंच की सुविधाएं हैं, क्या वहां पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सीधे जाके यहाँ से बंबई जाओगे और बंबई जाके एक्टिंग सीखोगे तो वो संभव नहीं है ना। मैं एक अपने एग्जांपल बताता हूँ। अभी सिंह साहब भी थे, हमारा एक बच्चा था एनएसएस कैंप में, उसने रंगमंच, उससे हमने नुक्कड़ नाटक करने को, हम अपने एनएसएस के कैंप में नुक्कड़ नाटक करने को कहते थे, है ना। तो उससे नुक्कड़ नाटक करने के, उसने बीकॉम में आके ये जाना कि वो एक्टिंग कर सकता है, जब नुक्कड़ नाटक किया उसने। फिर उसने कुछ शॉर्ट एक वर्कशॉप्स करी इसमें भारतेंदु नाट्य एकेडमी में, और उसके बाद बॉम्बे गया। 2002 में वो बॉम्बे गया था। अभी इस वर्ष जनवरी में हमने उसे बुलाया था। अभी तो वो काफी पिक्चरों में काम कर चुका है, ओटीटी सीरियल्स में कर रहा है। अभी फिजिक्स वाला करके एक सीरियल आया है, उसमें उसने काम किया। लेकिन ये
ये लंबा प्रयास इसमें करना पड़ा। आप अभी इस स्टेज में आने में उसे 20 साल लग गए, है ना। तो ये 20 साल में आप या तो उसके लिए तैयार हो, बात यही होती है ना कि आपके घर वाले क्यों नहीं तैयार होते। जैसा सर ने कहा कि उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल से सोचोगे कि आप अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान बन जाओ, तो वो बिल्कुल से बनना संभव नहीं है बेटा, है ना। तो उसमें इट विल टेक टाइम। और ये भी संभव है कि शायद आप उस स्तर तक नहीं, उसके बहुत निचले स्तर पे भी कितने सालों में पहुंचोगे, उस साल के लिए आपके पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का क्या मीन्स है ना। यदि आपके पास उस समय तक के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मीन्स अवेलेबल है तो आप उस दिशा में प्रयास कर सकते हो। लेकिन ये अच्छा तभी हो पाएगा जब आपके शहर में कोई ऐसी सुविधाएं हो जहां पर आपके एक्टिंग के ज्ञान की परीक्षा हो सके, है ना। और उसमें फिर आप, अगर आप लोकप्रिय होते हो, आपको लगता है, क्योंकि आप अपने आप समझ जाओगे कुछ समय में आपकी लोकप्रियता से और उससे कि आप कैसा कर रहे हो, है ना। आप उसको करने में आपको वो सजा लग रही है या आपको वो मजा लग रही है। मजा लग रही है ना। तो ये जब आपको हो जाएगा तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। एंड फॉर द पर्सन who is in somewhere in some foreign countries, I would like to tell you that we have explained how to find your potential. You know, the first I have said that identify your inner voice. When you will identify your inner voice, then only you will be able to define your goals, and then you will make conscious efforts in that direction. I have also explained use that set milestones, set time frame, set baby steps. Like you, if you will define that you will complete something in 1 year, then break it into 6 months, 3 months, and 15 days, so that you may assess your progress in short time. And if your progress is not satisfactory, then you can increase your speed. Okay. And accept your failures also. When you accept your failures, then you can try it in a different way, which may fetch you success. Celebrate your successes. The small successes should be celebrated so that you gain something from those successes, and set your own benchmark. Don't compare yourself with others. Okay, this is the brief of my talk today. Okay. जी, तो Mr. Nanda. जी, okay, Nanda साहब. Right, any other All right, question? sir. Now we are 15 minutes ahead of time. Yeah. So if there is no more question, we can close it for the day. Sure. Sure. Okay. सभी को Is there धन्यवाद. anybody? गीता को विशेष रूप से धन्यवाद कि वो गीता. जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा है। अभी मेरे और बच्चों का भी फोन आ रहा था कि मैम ज्वाइन नहीं कर पाए हम, तो मैंने कहा यूट्यूब का लिंक उनको कहिए वीडियो हम इसको डालेंगे, वीडियो देखेंगे। हाँ जी जी, है ना। चलिए ठीक है जी, नमस्कार। अगले हफ्ते फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्ते. थैंक यू सर।